Hello students, today we will discuss about the lesson first of your subject science, crop production. Crop production. As we know that due to increasing the rate of population also increases the requirement of food, and to fulfill the requirement of food we should follow some modern technique of crop production. Today we will discuss about crop production. First of all, we should know crop. What is crop? Crop क्या है? When same kind of plants are grown on a large scale together at one place are known as crops. जब same kind of plants लार्ज स्केल पे ग्रो किए जाते हैं तो उसे क्रॉप कहते हैं. That means plants are grown together at one place on large scale are known as crops. Now we will discuss about crop production in a branch of science that is known as agriculture. Agriculture is defined as the branch of science which deals with the study of cultivation of plants and rearing of animals. विज्ञान की वह शाखा, साइंस का वह ब्रांच जिसमें प्लांट्स के कल्टीवेशन के बारे में, एनिमल्स के रियरिंग के बारे में, पशुपालन के बारे में स्टडी करते हैं, साइंस के उस ब्रांच को एग्रीकल्चर कहा जाता है. एग्रीकल्चर the branch of science that deals with the study of cultivation of plants and rearing of animals. Rearing of animals is known as agriculture. Agriculture is the branch of science which deals with the study of cultivation of plants and rearing of animals. Agriculture, the term agriculture, in which we study how can we increase the rate of production, how are plants grown, how are plants cultivated, and how can we obtain grains from plants, grains from crop, and how can we fulfill the requirement of food. We will study about this in agriculture. ये सारी चीजें हम एग्रीकल्चर में सीख रहे हैं. Agriculture, that is cultivation of plants. Some activities are performed cultivation of plants, and those activities are known as agricultural practices.
कल्टीवेशन ऑफ प्लांट से रिलेटेड कुछ स्टेप्स, कुछ प्रोसेस हम लोग डिस्कस करेंगे जो उसमें यूज होता है। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो प्रोसेस हम करते हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं, उन सारे एक्टिविटीज को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के रूप में जाना जाता है। इससे आगे बढ़ने से पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप पर कुछ ब्रीफ डिस्कस करेंगे। Crops are classified on the basis of season, on the basis of growing, on the basis of sowing of plants. In which season crops are of two types. Crops दो तरह के होते हैं, रबी crops and खरीफ crops. रबी crops and खरीफ crops. रबी एंड खरीफ। रबी crops, those crops which are sown in winter season, which are sown in winter season and are cultivated at the early of summer season. जो विंटर सीजन में बोया जाता है और समर सीजन के प्रारंभ में, शुरुआत में जिसे कल्टीवेट कर लिया जाता है, जिसे काट कर घर ले आया जाता है, आर नोन एज रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स में जनरली लेग्यूमिनियस प्लांट्स, दैट मींस दलहन फसलें, ऑयल प्लांट्स, तेलहन फसलें। लेग्यूमिनियस प्लांट्स में आपका हो गया ग्रेम, पी, और ऑयल प्लांट्स में आपका हो गया मस्टर्ड। तो ये सभी जो है रबी क्रॉप्स में आते हैं, जो विंटर सीजन में बोए जाते हैं और समर सीजन में कल्टीवेट किए जाते हैं। खरीफ क्रॉप्स, दोज क्रॉप्स व्हिच आर सोन in summer season and cultivated in winter season. For example, rice, soybean, maize, these are kharif crops जो लगाए तो जाते हैं समर सीजन में, लेकिन इनका कल्टीवेशन विंटर सीजन के प्रारंभ में स्टार्ट में किया जाता है। तो रबी में फॉर एग्जांपल wheat, grain, pea, barley, and in kharif rice, maize, soybean, ये वीट, ग्रेन, पी जो है रबी क्रॉप्स में आते हैं। जनरली इन्हें विंटर सीजन में लगाया जाता है, लेकिन इसका कल्टीवेशन, इनकी कटाई जो है वो रबी में, समर सीजन के प्रारंभ में किया जाता है। खरीफ ये समर सीजन में बोए जाते हैं। These are sown in summer season but are cultivated in winter. So Rabi and Kharif. This classification on the basis of season. सीजन के आधार पर ये क्लासिफिकेशन की है। Now we will discuss about some agricultural practices. Agricultural practices. Those activities which are performed, those processes which are done in the cultivation of plants. कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स के लिए जो जो प्रोसेस यूज किए जाते हैं, जो जो एक्टिविटीज किए जाते हैं, आर नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। कौन कौन से हैं तो हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन
of soil. Second is sowing of seeds. Third, adding of manure and fertilizers. Fourth step is irrigation. Fifth, weeding. यहाँ पर देखिए कुछ में इरिगेशन पहले होता है, बीडिंग बाद में, कुछ में बीडिंग पहले होता है, इरिगेशन बाद में। नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। These are activities which are done in the cultivation of plants. ये वे सारे एक्टिविटीज हैं जो प्लांट्स के कल्टीवेशन के लिए किए जाते हैं। Now we will discuss about these practices one by one. Preparation of soil. First of all, preparation of soil. Soil का preparation किया जाता है। किसी भी टाइप ऑफ प्लांट्स के कल्टीवेशन में सबसे पहला स्टेप जो होता है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। तो सॉइल किस तरह से प्रिपेयर होता है, तो इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉविंग, सबसे पहला क्या होता है, प्लॉविंग, जिसको लूजनिंग ऑफ सॉइल, टर्निंग ऑफ सॉइल भी कहा जाता है। नाउ लेवलिंग, ध्यान देंगे यहाँ पर तो टर्म है एडिंग ऑफ मैन्युअर एंड फर्टिलाइजर्स। बहुत में ये चीजें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में भी शामिल किया जाता है। दैट मींस सॉइल को प्रिपेयर करते समय भी बहुत से प्लांट्स में मैन्युअर ऐड किए जाते हैं, फर्टिलाइजर बिफोर कल्टीवेशन ऐड किए जाते हैं। यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, वन बाय वन। तो फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें दो स्टेप लिया जाता है, प्लॉविंग एंड लेवलिंग। प्लॉविंग एंड लेवलिंग। तो प्लॉविंग दैट मींस लूजनिंग ऑफ सॉइल और टर्निंग ऑफ सॉइल। सॉइल को लूज करने का प्रोसेस, सॉइल को टर्न करने का, जो नीचे का लेयर है उसको ऊपर लाना, ऊपर का नीचे, जिससे कि वह फैरो हो जाए, भुरभुरा हो जाए, and much amount of air can be absorbed by the soil, which help in taking of oxygen by the plants from the root. प्लाविंग करने से सोयल जो है वो भुरभुरे सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उसमें एयर का प्रेजेंस अधिक होता है, वाटर मॉइस्चर अधिक होते हैं, और द पॉसिबिलिटी ऑफ growing the microorganism or the earthworm also increased. earthworm का डेवलपमेंट, माइक्रोऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट, जिसको कि हम फ्रेंड ऑफ एनिमल के नाम से जानते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म सॉइल को फर्टाइल बनाता है। यह क्रॉप प्रोडक्शन में एक वाइटल रोल प्ले करता है। सो प्लाविंग इज द फर्स्ट essential step of cultivation.
सेकेंड इज लेवलिंग आफ्टर प्लाविंग। जब सॉइल को हम टर्न करते हैं, लूज बनाते हैं, तो उसमें कुछ वीक पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े सॉइल पार्टिकल्स रह जाते हैं, और कहीं पर जो है हिप ऑफ सॉइल फॉर्म हो जाते हैं, मिट्टी का ढेर हो जाता है। इट क्रिएट डिफिकल्टीज ड्यूरिंग द इरिगेशन। इरिगेशन के समय इससे समस्याएं होती है। सो द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज द मस्ट प्रोसेस इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सेकेंड स्टेप है लेवलिंग। सॉइल को लेवलिंग करना, बराबर करना, उसे समतल बनाना। It helps in the irrigation. Once again, I'll repeat the importance of plowing and leveling. First of all, what is plowing? The loosening of soil or turning of soil is known as plowing. Leveling, to making plain the soil of field. पूरे फील्ड के soil को plain करना. This is leveling. Now, importance of plowing. What is the importance of plowing? It helps to penetrate the root into the depth or at depth. It helps to grow the microorganism, to develop the earthworm in the soil, which makes or increase the fertility of the soil. Leveling, it helps in the irrigation. This is the first step of preparation of soil. This is the first step of cultivation. Now second, sowing of seed. सीड सोइंग में किस तरह से, तो इसमें फर्स्ट स्टेप लिया जाता है सिलेक्शन ऑफ सीड। सिलेक्शन ऑफ सीड, ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पे, सिलेक्शन ऑफ सीड, सीड्स का सिलेक्शन, सोइंग ऑफ सीड्स। सोइंग ऑफ सीड का फर्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ सीड। सिलेक्शन ऑफ सीड, दैट मींस at first we should select healthy seed and high yielding seed। दो चीजों को ध्यान रखना होता है बिफोर सोइंग ऑफ सीड्स। select the healthy seed free from disease with high resistivity against the disease, against the infection, and second one is high yielding। सीड में भी कई तरह के सीड होते हैं, कुछ में यील्डिंग कैपेसिटी लेस होते हैं, कुछ का यील्डिंग कैपेसिटी हाई होता है। कुछ सीड्स प्रोडक्शन अधिक करते हैं, कुछ में प्रोडक्शन कम होते हैं। So we should select those seeds which have the ability of high yielding production। And third is at proper depth। Next is at proper distance। During the process of sowing of seeds, we should sow the seeds at proper depth। एक proper depth पर seeds को बोना चाहिए। अगर ऊपर रह गया तो विंड के साथ, हवा के साथ उड़ सकता है, या कोई बर्ड्स, कोई एनिमल्स उसे नष्ट कर सकता है, खा सकता है। If we sow at more depth, अगर ज्यादा डेप्थ पे हम लगा दें
then it difficult to outgrow, उसको बाहर निकलने में डिफिकल्टी हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, या अंदर ही वो सड़ सकता है, सूख सकता है। तो सीड्स को एक प्रॉपर डेप्थ पे लगाना चाहिए कि ताकि वो जर्मिनेशन में भी प्रॉब्लम नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट्स जर्मिनेशन and it can be grown easily. Next, at proper distance, seeds should be sown at a proper distance. That means a proper distance should be provided between two seeds. दो सीड्स के बीच में, दो प्लांट्स के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए to decrease the composition for nutrients, for water, for air. एक प्रॉपर डिस्टेंस रहने पर प्लांट्स के बीच न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, एयर के लिए कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज एज वी नो दैट to grow, to develop properly, a plant should be required a proper amount of nutrients, proper amount of water, and proper amount of air. So we should provide a proper distance between two plants. So यहाँ हम देख सकते हैं सोइंग ऑफ सीड्स में फोर मेन स्टेप्स है, चार स्टेप ऐसे है जिसे हमें फॉलो करना है। There are four steps we should follow during sowing of seeds. During sowing of seeds, we should follow these four steps. Once again, I repeat it: selection of seeds, high yielding seeds, at proper depth, at proper distance. Selection of seed में ही high yielding और disease free दोनों चीज को देखना है। सिलेक्शन ऑफ सीड में दो चीजों का ध्यान रखना है, इसे आप कर सकते हैं इस तरह से कि सिलेक्शन ऑफ सीड में ही दो चीज को मुख्य रूप से ध्यान देना है, एक एक हाई यील्डिंग सीड्स हो, दूसरा डिजीज फ्री हो। दैट सीड्स हैव high resistance against disease, and we should sow the seeds at proper depth. We should sow seeds at proper distance. This is the second step of preparation of soil. Now, third is थर्ड में आपको बताया कि बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें एडिंग ऑफ मैन्युअर, एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर पहले किया जाता है और इरिगेशन बाद में किया जाता है। तो यहाँ पर हम दोनों चीजों का जिक्र करेंगे। आप पहले भी डिस्क्राइब कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें मैन्युअर ऐड पहले किए जाते हैं, फर्टिलाइजर ऐड किए जाते हैं। यहाँ हम पहले देखते हैं इरिगेशन। Adding manure and fertilizers. Adding of manure and fertilizers. It is a step to increase the fertility of the soil. Generally, manures are organic compounds which contains humus or it forms humus in the soil and it increases the fertility of the soil. Fertilizers are either inorganic or organic substance which have a special type of nutrients containing minerals. For example, urea, phosphate, superphosphate, and so on fertilizers we use
during the cultivation of plants. Generally, fertilizers containing particular type of nutrients. Fertilizers make a special type of nutrients, say urea. Urea contains more amount of fertilizers. Now, once again, we will discuss of the adding of mineral fertilizers. This is your first class. Today, I'll try to explain briefly the topic crop production. In details, it is not possible in one class. It can be described. So, this is the first class. नेक्स्ट क्लास से हम लोग ध्यान देंगे, आप लोग वेल प्रिपेयर होकर क्लास अटेंड करेंगे। क्लास से पहले आपको इंस्ट्रक्शन भी दिया गया था कि बुक नोटबुक लेकर आप बैठें और जो चैप्टर शुरू होगा, जो टॉपिक चल रहा है, क्लास शुरू होने से पहले उसकी स्टडी करके रखिए। आप एक बार रीडिंग लगाकर जरूर बैठे। आप अगर पहले से रीडिंग लगा कर रखेंगे तो हम थोड़ा सा फास्ट में अगर इसको हम डिस्क्राइब करेंगे तो आप अच्छे तरीके से इसे कैच कर सकते हैं। ये लाइव क्लास के अलावा आपका व्हाट्सएप ग्रुप बाय द हेल्प ऑफ पीडीएफ, बाय द हेल्प ऑफ रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी ये जो चीजें हैं इनका ऑफलाइन वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल सकता है। फिर पीडीएफ के द्वारा इसका नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नोट्स आप कॉपी में, नोटबुक में लिखेंगे और उससे अच्छी तरह से समझेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो पर्सनल आपका तो आप टीचमेंट के आप चैट सेक्शन में या व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेंशन कर सकते हो। आपको नेक्स्ट क्लास में या व्हाट्सएप ग्रुप में आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। दिस इज द फर्स्ट क्लास। इसमें अगर थोड़ी बहुत समझने में प्रॉब्लम भी हुआ होगा तो नेक्स्ट क्लास से और बेहतर आपको मिलेगा। आप दो चीजों का ध्यान रखेंगे, फर्स्ट फुल कंसंट्रेशन, सेकंड विदाउट एनी डिस्टरबेंस। और जैसा कि पहले भी आपको बताया गया कि आप पहले से लेसन को रीड करके स्टडी करके रखें कि ताकि लाइव क्लास में ज्यादा से ज्यादा आप चीजें एब्जॉर्ब कर सकें, ज्यादा से ज्यादा चीजें आप ले सकें। वो तभी होगा जब आप टॉपिक को पहले से पढ़ के रखें। दैट्स ऑल आज के लिए।